آئیں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت ہماری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ کھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدائے قادر مطلب باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر عالمگیر گناہوں کی معافی جسم کے جوتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. آج واپس ہم خروج کی کتاب میں آئیں گے. خروج 20 باب میں ہم پہنچے ہیں. 20 باب میں کیا ہے؟ 10 احکام جو ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں. بس پڑھنے کی حد تک ہمیں پتا ہے, زبانی بھی ہمیں یاد ہیں, لیکن اس کو تھوڑا اندر سے دیکھیں گے کہ ہے کیا یہ. آئیں ذرا نکالیں خروج 20 باب اور پہلی آیت کو پہلے پڑھیں گے ذرا. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ ہاں جی پڑھ دیں آگے. خدا میں تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. یہاں خداوند اپنا تعارف کرواتا ہے بنی اسرائیل قوم سے اور اسے بتاتا ہے کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں. اور پھر پہلا حکم آتا ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مان. اب تھوڑا سا اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو جیسے جیسے خدا حکم دیتا ہے ویسے ویسے اس کی ہمیں تھوڑی سی باتوں کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. خدا یسوع مسیح نے جو 10 حکم ہیں ان کو تھوڑا چینج کیا, تھوڑا سا, زیادہ نہیں. آئیں ذرا دیکھتے ہیں متی کی انجیل 22 باب اس کی 37 سے 40 آیت تک پڑھیں گے ذرا. 29 نمبر پیج ہے. اور اس نے اسے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان. اب خدا نے پہلے حکم کیا دیا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, لیکن خدا یسوع مسیح یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں. اضافہ کیا کیا انہوں نے؟ پڑھیں ذرا. اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت کر. یہاں عقل کی بات بھی آتی ہے. کیا میں عقل کے ساتھ دنائی کے ساتھ خداوند سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور اضافہ ہے اس میں, وہ کیا ہے؟ پڑھ لیں ذرا. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا ہے؟ یہ 10 حکموں میں نظر نہیں آتا. 10 حکموں میں یہ نظر نہیں آتا, لیکن خداوند یسوع مسیح یہ اضافہ کرتے ہیں تاکہ ایک بات ہی ختم ہو جائے. اگر ہمارے پڑوسی سے ہم محبت کریں گے تو بہت ساری باتوں سے ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم جو خدا یسوع مسیح فرماتے اس پر عمل کریں.
और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत करें। जी आगे नहीं, वापस आ जाए क्रोध की किताब में। और तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। नहीं जी, पहला हुक्म पढ़े ना पहले। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा उनका कलाम फरमाता है मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। इसमें तमाम देवताओं की परस्तिश करने से हमें मना किया गया है, सिवाय यहोवा खुदा के। सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी इबादत करने की जरूरत है? खुदावंद की। और किसी भी मबूद की इबादत करने की हमें जरूरत नहीं है। ये पहला हुक्म है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम यहोवा को छोड़ के और मबूदों की ज्यादा इबादत करने में लगे हुए हैं, पसंद करते हैं। और ये भी मैं बता दूं, रुपया पैसा जो है ये सबसे बड़ा मबूद है जिसके पीछे हम भागते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और यहोवा को हम भूले बैठे हैं। हम यहोवा को नहीं याद करते, लेकिन हमें रात को 12 बजे कह देना कोई कि फलां जगह पे जा तुझे पैसे मिल जाएंगे, तो हम सारे काम छोड़ के वहां पे चले जाएंगे। लेकिन ये कहें कि रात उठ के 12 बजे तूने दुआ करनी है, करेंगे? नामुमकिन सी बात है। आज हम गैर मबूदों के पीछे ज्यादा भागना पसंद करते हैं और उनको तरजीह देते हैं। लेकिन लिखा है, दोबारा से पढ़ दें, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। और दूसरा जी, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज किसी सूरत की बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। यहाँ पे खुदा फरमाता है कि तू बुतों को ना बनाना, ना किसकी शबीह बनाना। यहाँ पे बुतों को बनाने से भी मना किया है, उसकी पूजा करने से नहीं बल्कि उसको बनाने से भी क्या है? मना किया गया है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? चर्चिज में भी उनकी इबादत होती है, चर्चिज में भी हम उनकी पूजा करते हैं, हम जाके उनके आगे सजदे करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, दूसरा हुक्म क्या है? दोबारा से पढ़ें जरा इसको, चलिए करें इसको। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। हाँ जी। न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में। ना किसी चीज की सूरत बनाना। आसमान पे कौन है? खुदावंद अपनी सूरत बनाने से भी क्या कर रहा है? मना कर रहा है। क्या के? या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। ना जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में किसी की शबीह ना बनाना, ना तो उनकी इबादत करना और ना तो उनके आगे झुकना। लेकिन आज हम ये सारे काम करते जा रहे हैं। हम बुत बनाते हैं और बुतों के सामने सजदे करते हैं। अफसोस की बात है, हुक्म बड़े याद करते हैं। हुक्म मैनू दसे या 25 से गुजर 10 हुक्म मैनू आते तो हैं, उन पर अमल कितना करते हैं? उनको सीखा क्या है आपने? सिर्फ ये घंटा मार लेना, उनको याद कर लेना और फिर उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। याद करके अगर अमल नहीं करते तो उसको याद करने का भी आपको कोई फायदा नहीं है। कल अफसोस की बातें मैं देखता हूं मीडिया पे, क्या आजकल क्या हो रहा है? रींग रींग के एक बुत को सजदा करने के लिए जा रहे हैं, रींग रींग के उल्टे सीधे होके। हम खुदा के कलाम को भूले हुए हैं। खुदा का कलाम हमें कुछ बताता है और हम कुछ का कुछ करते जा रहे हैं। आगे बढ़े। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा। गैरतमंद है खुदा, गैरतमंद है खुदा, गैरत रखता है इन चीजों की। इसीलिए वो मना करता है कि तुम बुतों के आगे सजदा ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, गैरतमंद खुदा हूँ। खुदा गैरत रखता है और खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। जब हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, किसी तस्वीर के आगे सजदा करते हैं, तो खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता। इसलिए आज हमें याद जरूर करवाएं बच्चों को, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि बेटा इन पर अमल भी करना। मुझे एक दिन एक लड़का मिला, मुझे कहता भाई साहब मैं ताड़ा शिगिर्द बनना है। तो मैं चौंक गया, मैं कहने मेरी काली शिगिर्दी करनी। तो कहता जी मैं
10 हुक्म सीखने ने। मेरी मां ने मैंने सिखाए लेकिन मैं होर सीखने। मैं कहा अच्छा जी आज मैं सिखा देंगे, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो मैं उस पर अमल भी करवाऊंगा। ये जेहन में रखें, खाली सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लेना पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इन पर अमल करना सबसे बड़ी बात है। आज तीसरे पर आजे। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके लाभ को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। कब तक? तीसरी और कई बार मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं, अक्सर होता ये, पूछो तुसी दीवे बालदे नहीं, मेरा दादा बालदा है, मेरे दादे का भी प्यो बालदा है, परदादे पे चले जाते हैं। तो लिखा क्या है? खुदा तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या है उसकी सजा देता है। जब बाप दादा दिए जला देते हैं, लेकिन हमें उनकी माफी मांगनी जरूरी है। अगर हम अपने गुनाहों के इकरार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि खुदावन हमारे बाप दादा की गलतियां भी माफ कर दे जो उन्होंने की है, हमने उनकी नहीं माफी मांगनी, अपनी माफी मांगनी है कि खुदावन तू हमें माफ कर, क्योंकि उन्होंने गलती की है। लेकिन हम तेरे आगे झुकते हैं, इल्तिजा करते हैं, जो गलतियां की गई हैं उनकी हम तुझसे माफी मांगते हैं, तो वो माफ कर देता है। लिखा है तीसरी और चौथी पुश्त तक वो क्या करता है? सजा देता है। इसीलिए लोग फंसे रहते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं होती। पूछो नहीं जी मैं तो माने ही नहीं, मैं जो का पैदा मैं नहीं देखे। हाँ थोड़ी देर बाद जब कहा जाता है हाँ जी मेरा प्यो बालदा सी, मेरा दादा बालदा, दादी बालदी सी, फिर बात वही आ जाती है। तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा क्या करता है? सजा देता है। जब तक आप उस गलती का इकरार नहीं करते उस देर तक खुदा सजा देता रहता है। आगे पढ़ें। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। क्या है? जो मेरे हुक्मों को मानते मैं उन पर रहम करता हूँ। रहम वो उसी वक्त करेगा जब हम उसके हुक्मों को पढ़ेंगे, उनको अमल करेंगे। खाली पढ़ते ना भी क्यों ना, खाली रट लेना, याद करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इस पर अमल नहीं करते। बच्चों को जब सिखाते हैं तो उनको ये भी बताएं कि बेटा इस पर अमल करना है। 10 हुक्म ये हुक्मों का खुलासा है। ये बहुत ऐसी चीज है, ये बहुत बाइबल मुकद्दस में वो चीज नजर आती है जो खुदा ने खुद लिख के दी है। मूसा को बुलाया पहाड़ पर, मूसा ऊपर आ जा, या मूसा पर गया तो खुदा ने लिखा है कि खुद हुक्म लिख के उसको दिए, तख्तियां तराशी, फिर खुदा ने हुक्म दिया। खुदा ने क्या लिखा तो नहीं होगा किसी चीज, खुदा ने तो कह दिया होगा हो गया होगा, लेकिन लिखा खुदा ने खुद हुक्म लिख के दिए। लेकिन आज हम उसकी लिखी हुई चीज पर भी अमल नहीं करते। हम ठेकेदार बने हुए हैं, मजहबी ठेकेदार, लेकिन इन पर अमल करवाना हमारा काम है। जब बच्चों को सिखाते हैं तो साथ साथ इनको ये भी कहें कि बेटा इन पर अमल भी करना है। अमल करेंगे तो इसका आपको फायदा है, बाकी याद करने का आपको कोई फायदा नहीं है। याद करके क्या करना है आपने जब उस पर अमल ही नहीं करना। अगर अमल करेंगे तो खुदा आपको क्या करेगा? बरकत देगा। खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन काम वही करते रहते हैं, गैर मबूदों के आगे भी झुकते हैं, सारे गलत काम करते हैं, तो फिर वही बात आ जाती है कि आज जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके बच्चों को खुदा सजा देता रहता है। वो फंसे रहते हैं किसी ना किसी जगह पे। आगे पढ़े। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। ये तीसरा हुक्म है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। हाँ जी, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। इसका मतलब है कि जब हम किसी गलत बात पर कोई हमसे गलती हो जाए तो खुदा की कसम खा लेते हैं, हम कसम खा लेते हैं। तो ये हम एक तो दीन की बेइज्जती करते हैं, अपने मजहब की बेइज्जती करते हैं, बाइबल मुकद्दस की बेइज्जती करते हैं, अपने खुदा की भी बेइज्जती करते हैं। लिखा है कि मैं उसे बेगुनाह ना ठहराऊंगा। जो झूठी कसम खाता है, कसम खाना है ही हमें हराम है। खुदा हमें मना करता है कि तू किसी की कसम
ना खाना। पढ़े जरा आगे। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। अब याद करके तू सबत का दिन याद करने ना, हुक्मा में ये भी है ना, ये चौथा हुक्म है। क्या सबत का दिन हम पाक मानते हैं? उसकी अहमियत को हम जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। हम दुनियादारी में बहुत गर्क हो गए, दुनियादारी में लगे हुए हैं, जबकि लिखा है कि तू सबत का दिन क्या करना है। क्योंकि खुदा ने क्या किया था? 6 दिन काम किया, 7वें दिन क्या किया? आराम। और ये खुदा के खास इराम का दिन है। लेकिन खुदा उसी दिन चाहता है कि हम उससे मुलाकात करें, उसके पास आए, उससे बातचीत करें, उससे बात सुने कि वो हमसे क्या फरमाता है। इसलिए लिखा है कि याद करके, उंज सानू बड़ियां गल्लां याद है, टीका किसी का 2 साल बाद भी होए तो सानू याद है। डेट दे जानी, मैं अगले साल टीका करना जे, मैं ब्याह करना जे, वो नहीं असी बोलते, क्योंकि रिश्तेदारी का मसला ना, रिश्तेदारी टूट जानी है। तो जो खुदावंद खुदा है, जो ये कहता है कि याद करके तू सबत का दिन, वो नहीं हम मानते। वो गल तो याद रहती, हमें याद ही नहीं रहती उसकी बातें। इसलिए जरूरत है कि इस चीज को फॉलो करें। जब आप हुक्म, बड़ी अच्छी बात है कि आप हुक्म सिखाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हुक्म आते हैं, लेकिन उन पर अमल करना भी उनको साथ साथ सिखाते जाएं। आगे बढ़े जरा। 6 दिन तक तो मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। कितने दिन काम काज करना? तो 7वां दिन क्या है? करते हैं, इबादत करते हैं हम। 7वां दिन हमने स्पेशल इस काम के लिए रखा है कि हम या तो किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, या हम घर में हकीका रखेंगे, या कोई शादी रखेंगे। इन कामों के लिए हमने 7वां दिन मुकर्रर कर लिया है। जबकि खुदा कहता है कि इसको तू पाक करना, पाक मानना, और पाक उसी वक्त होगा जब हम उसकी इबादत करेंगे। इबादत से बड़े पाक की जगह कोई नहीं है। और जब हम पाक जगह पर नहीं आते तो फिर हम कैसे इस हुक्म पर अमल करते? आगे पढ़े। उसमें ना तो कोई काम करे और ना तेरा बेटा ना तेरी लौंडी, ना तेरा बेटा ना तेरी लौंडी, ना तेरी बेटी और ना तेरा गुलाम, ना तेरी बेटी ना तेरा गुलाम, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे हाथ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और खुदावन ने 6 दिन आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है, वो सब बनाया। सब क्या था? 6 दिन के अंदर बनाया। लेकिन 7वां दिन खुदावन ने क्या किया? जब सारा कुछ बन गया, खुदावन ने कहा अच्छा है। अपने 7वें दिन उसने आराम किया। जाके पढ़े। और 7वें दिन आराम किया, इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी। खुदावन ने सबत के दिन को क्या है? बरकत दी। हम उस बरकत को मानते हैं, हम उस दिन को अगर मानते हैं, अगर चर्च चाहते हैं, तो खुदा आपको बरकत देता है। वरना आपकी बरकतें चल रहा होता है, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन बरकत नहीं मिलती आपको। बरकत उसी वक्त मिलती है जब आप खुदा के हुक्मों को मानते हैं। आगे पढ़े। और उसे मुकद्दस ठहराया, और तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। दराज हो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ खुदा ने वादा किया। खुदा को, मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ, खुदा को पता था कि आने वाले वक्त में जो नौजवान नस्ल है ये नाफरमान होगी, ये खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगी, ये अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी। इसलिए खुदा ने उसमें एक लालच दिया। खुदा ने एक और इसमें ऐड किया। किसी हुक्म के साथ कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। इफ्सियों 6 बार पर उसकी दुआत को भी पढ़ दे। यहाँ खुदा भी यही फरमाते हैं। जाके पढ़े 6 की 2। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर,
ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ये वादा है इसके साथ। इसलिए अगर ऊपर लंबी पाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की क्या करें, इज्जत करें, उनकी फर्मा बरदारी करें, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा के वादे हैं। और जब खुदा के वादों को आप मानते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, तो खुदा अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटता। खुदा नहीं पीछे हटता, हम हट जाते हैं। हम खुदा से वादे करते हैं, बार बार वादे करते हैं और बार बार वादों से हट जाते हैं। इसलिए हमारे घर के हालात चेंज नहीं होते। घर में मुश्किलातें बढ़ती जाती हैं, लेकिन फिर हम खुदा से गिले शिकवे करते, लेकिन अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर गलती क्या है, हमने कौन सा हुक्म तोड़ दिया है, हमने कौन सी गलती कर दी है जिससे हमें ये सजा मिल रही है। क्या आगे पढ़े जरा। ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। हाँ जी, वापस आ जी, वापस। तो खून न करना, सबसे छठा हुक्म, तो खून ना करना। इस हुक्म में सजाए मौत का जिक्र नहीं है। जैसे कोई गुनाह करता है, गलती करते, ये भी खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर कोई गुनाह करता है, गलती करता तो सजाए मौत दी जाती, इससे खुदा मना नहीं कर रहा। लेकिन कत्ल करने से क्या कहा है, मना करता। इसमें इंसान को मारने से खुदा मना करता है, जैसे हाबिल और कहर ने क्या किया था। इसलिए खुदा यहाँ पे इस हुक्म में भी कहता है कि तू ये काम ना करना, किसी इंसान को कत्ल ना करना, क्योंकि इंसान को खुदा ने खुद बनाया है। इंसान खुदा के हाथ की कारागरी है और खुदा नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई चीज को कोई तोड़ने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे। क्योंकि अगर हम अपने हाथों से कोई अच्छी चीज बनाए तो फिर अगर वो खराब करने की कोशिश करे तो कितना गुस्सा आता है, नहीं आता है। इसी तरह खुदा को भी गुस्सा आता है, इसलिए वो कहता है कि तू खून ना करना किसी का भी। ये नहीं कि जिससे दुश्मनी उसको कत्ल कर दे, किसी का भी खून करने से मना किया गया। आगे तो ज़िना ना करना। सातवां हुक्म है, इसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ वफादार रहने के लिए पाबंद किया गया है। ये हुक्म ऐसा है जो मियाँ बीवी के लिए है कि अगर मियाँ बीवी उनकी शादी हो चुकी है तो फिर वो क्या करें, आपस में भी वफादार रहे। और तमाम वो नौजवान जोड़े, बेटियां बेटे जो गैर शादीशुदा हैं, उनको भी ज़िना करने से मना किया गया है। इसलिए आज इन हुक्मों को पढ़ें भी, इनको सीखें और इन पर अमल भी करें, और फिर खुदा आपको बरकत देगा। क्या आगे, तो चोरी ना करना। तू चोरी ना करना, यानी कि किसी का भी नुकसान, क्योंकि जब आप चोरी करते तो किसी का नुकसान करते हैं। आपके ख्याल में तो कोई मसला नहीं है, चोकर या चीज चले गए, लेकिन अगले बंदे को जब पता चलता तो उसको एक झटका लगता है। और खुदा इस बात से मना करता है कि तू किसी का भी कोई नुकसान ना करना। खुदा नुकसान करने से भी क्या कर रहा है, मना कर रहा है। इसलिए कहता है तू चोरी ना करना। आगे, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। लेकिन ये मुश्किल के काम नहीं, मुश्किल काम है ना कि हम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दें, क्योंकि सब तो बड़ा साडा दुश्मन जेड़ा वो साडा पड़ोसी होता है। सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा पड़ोसी होता है। इसलिए हम इन चीजों से भागते हैं। क्या है, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। इसलिए जरूरत है कि इनको पढ़ें, इन पर अमल भी करें। कभी अपने पड़ोसी के साथ ना, पहले जब ऊपर हमने पढ़ा तो लिखा तो अपने खुदा से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से भी अपनी मोहब्बत अगर मोहब्बत करेंगे तो फिर आपने कौन सी गवाही देनी उसके खिलाफ, कभी नहीं आप बोलेंगे। जागे, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। हर किसी किस्म के लालच को खुदा ने क्या है, मना किया है। वो अपने पड़ोसी के घर की किसी चीज का लालच ना करना। जागे, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और ना उसके गुलाम, ना उसकी लौंडी, ना उसके बैल, ना उसके बैल, ना उसके गधे, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच। ना तू अपने पड़ोसी की किसी चीज और चीज का लालच करना।
लेकिन पड़ोसी के घर कोई चीज हो तो साडा दिल करता साडे घर लाजमी होनी चाहिए, उधर रवे ना रवे साडे घर होनी चाहिए या उहदे घर कि चले गए। अगर थोड़ा माड़ा हो तो फिर तो सानू मुट्ठी बड़ी मुश्किल हो जाती ना, यह तो माड़ा जो है ये घर च यह चीज की पई। इसलिए लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, 10 हुक्म सिखाएं लेकिन अपने बच्चों को इस पर अमल करना भी साथ साथ सिखाते जाएं, ताकि खुदा आपको भी बरकत दे और अपने बच्चों को भी बरकत दे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को उठाएं, दुआ करें, बड़ी प्रवीण के सामने दुआ करें।